अभी मैंने मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है एक्चुअली. When will you get the writing skills? I mean, when you have semester. exam, first semester exam, na? That will be which month? Which month will you have that? November. Before Diwali. Is it after Diwali or before Diwali? No, Before Diwali. before Diwali you will have your first semester exam, right? Yes, ma'am. Okay. And in that exam, that will be for 80 marks? No, man. Yes. 20 and 40 marks. Yes, 40 marks. Okay. Semester exam is for 80 marks or is it for 40? I thought it is for 80 marks. See, I have to see the weightage of writing skill that we had discussed last time. That's why I'm asking you. आपका जो semester exam है, that is for how many marks? 80 marks. 80, na? You said, Rutupurna. Yes, ma'am. Yeah, so then in that case you will get 20. हाँ, तो आपका जो writing skill होगा वो 20 marks का होगा. They will divide it into 4 sections. है ना? Reading comprehension will be there, comprehension will be there. Then you will have writing skill section, then you will have grammar, and then last is your literature. आपके 4 section में पेपर डिवाइड होगा ना बेटा? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो मोस्टली ऐसे 20 का वेटेज रखते हैं और दे डू इट 20 एंड दे कीप दी ग्रामर पोर्शन फॉर 25 एंड लिटरेचर फॉर 15, ऐसे करके भी रखते हैं. ठीक है? सो व्हाई आई एम आस्किंग यू कि हाउ मेनी राइटिंग स्किल्स यू विल गेट फॉर योर फर्स्ट term exam. Accordingly, I have to prepare you. Okay? Now, since you are already done with your first UT, आज आपका UT हो गया है ना? किसी का 18th को था, किसी का 19th को था, सबका हो गया UT? सबका हो गया बेटा? No, ma'am. No, ma'am. आपका प्रीति रहता है, ऋतुपूर्णा आपका रहता है. ओके, ठीक है. सो एनीवेज कोई बात नहीं, हमने तो फर्स्ट यूटी का तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द सिलेबस. ओके, सो वी डोंट नीड नॉट वरी अबाउट इट. बट यस, राइटिंग स्किल्स वी हैव टू स्टार्ट with that. Now what your task would be कि आप जब स्कूल में मैम will make you do some writing skills ना, in your notebook or in your register, you will tell me about those writing skills कि वो क्या क्या करा रही हैं. ठीक है? So in between classes, we can have one topic at least. समझ गए? Okay, ma'am. हर क्लास में हम 2-3 लेसन करने के बाद we can do one writing skill. समझे? Okay. Okay. So we'll resume our lesson, Mark Twain. We were doing, where's the book? Book ही गायब हो गई है. 1 second. 1 minute better. Yeah, it's it. To make you, yeah, you can see, you all have your books with you. आपके पास अपनी किताबें हैं, पुस्तक हैं बेटा? Yes, ma'am. Okay, so we were on page number 45. We were on page number 45. We were doing these quotes. Now, these quotes are very important. They might ask you in exam. They might ask you, they are all one-liners. So, they can ask you to explain, ठीक है ना, these quotes. So, आपके साथ में I'll share the explanation जो पूरा इसका है of these quotations with you. But meanwhile, I want you to tell me कि what actually it means. अगर if you can read and tell me the meaning of it, let me check whether you have understood or not. Like the first, it says all generalizations are false, including this one. What does it mean? इसका क्या मतलब है? What is the meaning of generalization and what does
the entire statement mean? बताओ, आप बताओ हर्षदा, कोई एक बच्चा अनम्यूट करके बताएगा मुझे इसका मतलब? All generalizations are false including this one. First of all, tell me the meaning of generalization. जनरलाइजेशन का क्या मतलब है? हम जनरल बोलते हैं, जनरल का क्या मतलब है? बोलो बेटा। सामान्य। सामान्य, मतलब जनरल का मतलब सामान्य, लेकिन जब हम जनरलाइजेशन बोलते हैं, हम बोलते हैं ना डोंट जनरलाइज दिस थिंग, तब हमारा क्या मतलब होता है? मैम सामान्यकरण। हाँ, मतलब हम सबको एक जैसा ना देखें, ठीक है ना। डोंट जनरलाइज, कोई भी चीज अगर गलत है या सही है तो हम बोलते हैं ना डोंट जनरलाइज इट। तो जनरलाइजेशन, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल जनरलाइजेशंस आर फॉल्स, कि अब जब हम कोई भी जनरल चीज जनरलाइज करते हैं तो वो सही नहीं होती, इंक्लूडिंग दिस स्टेटमेंट जो उसने किया है। नाउ दिस इज अ टच ऑफ ह्यूमर। मार्क ट्वेन जब भी बात करते हैं, he makes a very his statements very humorous or full of irony or pun. ठीक है? What is the meaning of irony? What is the meaning of pun? And how are they different? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मैम प्लीज क्वेश्चन रिपीट करो ना। What is the difference between irony and pun? P-U-N. क्या डिफरेंस है? क्योंकि उनके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट दे आर ह्यूमरस। वो मार्क ट्वेन जब भी बात करते हैं, इवन इफ इट इज अ सीरियस टॉपिक, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन दैट। और ह्यूमर कहाँ से लाते हैं? इधर ही मेक्स इट आयरॉनिकल या वो पन होता है। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? क्या फर्क है दोनों के बीच में, आयरनी एंड पन के बीच में? आयरनी होता है बेटा व्हेन वी एक्सपेक्ट समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स हैपेंस। ओके, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो हो जाता है, उसमें जब फर्क आता है। सपोज वी थिंक दैट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज गोइंग टू बिहेव लाइक दिस, ठीक है? कोई भी हम कैरेक्टर ले लेते हैं एंड वी थिंक कि ये इस तरह से बिहेव करेगा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बट ही बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे। जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं, कुछ और, ठीक है? एंड वो आयरॉनिकल क्यों हो गया? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमने उसको कहाँ समझा था और वो कैसे उसने किया, क्या किया उसने। जब हम कहाँ और कैसे में हम फर्क देखते हैं ना, कहाँ मतलब ऊंचा सोचा हमने उसके बारे में, और कहाँ वो निकला, है ना? तो उसको हम आयरनी, और ऐसी आयरनी को, वो एक सिचुएशन की भी आयरनी हो सकती है तो हम कहते हैं इट्स एन आयरनी ऑफ सिचुएशन, और वो एक कैरेक्टर की भी हो सकती है तो वी से इट्स एन आयरनी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? एंड पन होता है व्हेन डबल मीनिंग होती है। हम कोई बात बोलते हैं और उसके अंदर एक डबल मीनिंग छुपा हुआ होता है, जो अभी हम करेंगे, शायद अभी इसमें एक लाइन आएगी, ठीक है? सो दिस इज ऑल जनरलाइजेशंस आर फॉल्स इंक्लूडिंग दिस वन। का मतलब हमें किसी भी बात को हमें सब चीजों को हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए, उसको एक तरह से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और वो कहता है ये बात जब मैं कर रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट के लिए भी लागू होता है। दिस इज इट अप्लाइज टू दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। समझे? Like, yeah, this can you see this? Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Now this is pun. क्यों? ये कैसे हुआ पन? इसमें डबल मीनिंग कहाँ छुपा हुआ है, बताओ? हम
बेटा बोलो ना समृद्धि, आप कुछ बोल रहे हैं अनम्यूट करके। नो मैम। बेटा हाँ बोलो बच्चा। ओके सो नाउ एज इज, आपको पता है ना, लोग कहते हैं अब तो हमारी उम्र बढ़ रही है, बट कुछ लोग क्या कहते हैं, एज इज जस्ट, इट्स इन योर माइंड। एक्चुअली आपकी जो बॉडी है, इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग यू आर गेटिंग ओल्ड। जब आप ये सोचते हो कि मैं ओल्ड हो रहा हूँ या ओल्ड हो रही हूँ या मेरी उम्र बढ़ रही है, तो हमारी जो शरीर है ना बेटा, आवर बॉडी ऑल्सो रिएक्ट्स एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। हम अपने बॉडी को वैसा ही बना लेते हैं। सो सेज ना, एज इज नथिंग बट अ नंबर। हम बोलते हैं ना कि एज कुछ नहीं है, बस एक नंबर है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे माइंड एंड मैटर का दो मतलब हुआ। एक तो माइंड करना होता है कि हम जब कोई जो इसका बुरा मना देते हैं, कभी कभी कोई बात हमें कुछ कहता है और हम बुरा नहीं मान जाते हैं, है ना? बुरा मान जाते हैं, वी माइंड इट, इजंट इट? अगर Yes. इफ यू डोंट माइंड, देन इट वोंट मैटर। अगर हम माइंड ही ना करें तो इट वोंट मैटर, हमारे लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, Yes, राइट? ma'am. अगर हम उसको, उस बात को कंसिडर ही ना करें, अगर कोई हमें कुछ बोलता है एंड वी डोंट माइंड एट ऑल, ठीक है, बोलता है तो बोलने दो। सो दैट थिंग it becomes immaterial for us, we will not mind, तो it will not matter। जब हम माइंड ही नहीं कर रहे, हम बुरा ही नहीं मना रहे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं चीज, राइट? अनदर माइंड एंड मैटर इज हियर। माइंड ही इज टॉकिंग अबाउट ये, एंड मैटर ही इज टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल substance, ठीक है? नाउ इफ यू, if that age thing gets into your mind, अगर वो आइडिया हमारे दिमाग में आ जाएगा, तो हम फिजिकल सब्सटेंस हमारा क्या कहेगा, ओ हमारी तो उम्र बढ़ गई, अब हम बैठ जाते हैं। समझ गए? Yes, सो ma'am. जब एक बात के दो मीनिंग निकल कर आते हैं ना, तो हम उसको पन बोलते हैं। लेकिन जब कोई बात कहते हैं और वो वैसा नहीं होता, तो हम उसको आयरनी बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। नाउ बी केयरफुल अबाउट रीडिंग हेल्दी बुक्स, यू मे डाई ऑफ अ मिसप्रिंट। इसका क्या मतलब हुआ? सी, देयर इज अ डीपर मीनिंग दैट लाइज इन दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब, अच्छा ओके, जस्ट टेल मी द लिटरल मीनिंग, जो भी आप ये देख रहे। हाँ प्रीति बोलो। सहर्ता से जुड़ी किताबें पढ़ते समय सावधान रहे। किसी छपाई की गलती के कारण आपकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सो देयर कैन बी अ मिसप्रिंट एंड यू कैन, इफ यू ब्लाइंडली फॉलो दैट बुक, अगर आप उसको, इफ यू आर फॉलोइंग इट लाइक अ बाइबल, आप उसको देखकर आप जो लिखा है वही करते हो, सो यू एंड अप लूजिंग योर लाइफ। आप मर भी सकते हो, है ना? अगर जो भी, अगर, क्योंकि समटाइम्स देयर इज अ मिसप्रिंट। व्हाट इज मिसप्रिंट? कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपको इस चीज की, हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो प्लीज समृद्धि। मिसप्रिंट का क्या मतलब हुआ? कैसे हमारी जान जा सकती है मिसप्रिंट से? कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग इसलिए। मिस्टेक हो जाती है। कोई एग्जाम्पल दिमाग में आता है आपके रिलेटेड टू दिस? यस बताओ, क्लास को बताओ बच्चा। मैम, ये हेल्थ के रिलेटेड नहीं है, पर हमारे बुक के रिलेटेड है। ये हेल्थ बुक से रिलेटेड है ना बेटा? सपोज यू हैव टू टेक समथिंग, यू हैव टू कंज्यूम इट ओनली 1 मिलीग्राम, 1 mg बोलते हैं ना, है ना? अगर हम यस मैम। किसी की डोज हमने कम लेनी है और हम उसको मिसप्रिंट होने की वजह से हम उसको ज्यादा ले लें, वी कंज्यूम मोर, तो दवाई है बेटा, वो तो आपकी जान ले लेगी अगर आपने ज्यादा ले ली।
और इट कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो. कोई एक चीज जो आपने नहीं करनी है, okay, some kind of exercise which is not good for you because you have certain health issues, और आप उस चीज को फॉलो कर लो just by reading a health book, not taking the advice from a doctor or some professional, then you end up losing either your health completely or losing your life. होता है कि नहीं होता है ना? तो एक तरह से मतलब वैसे तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता इसको, लेकिन आपने सुना होगा ना, नीम हकीम खतराए जान. कभी कभी अपने बड़ों के मुंह से सुना होगा, नीम हकीम खतराए जान का मतलब होता था ना कि तुम ऐसे क्वैक्स के पास मत जाओ. क्वैक्स वो होते हैं जो कि दे आर नॉट प्रोफेशनल डॉक्टर्स, दे आर जस्ट दे प्रैक्टिस मेडिसिन जस्ट बिकॉज कहीं इधर उधर पढ़ पुढ़ के कर लेते हैं. दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट डिग्री होल्डर्स. तो अगर आप उनके पास चले जाओगे तो वो आपको उल्टी सीधी दवाई देंगे और आप की तबीयत खराब हो सकती है. सिमिलरली अगर आप हेल्थ बुक को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, मे बी दैट पर्टिकुलर थिंग डजंट गो विद योर हेल्थ. आपकी सेहत आपको अलाउ नहीं करती वो चीज करने के लिए, तो ये इट कैन लीड टू इट मे टर्न आउट टू बी डिजास्ट्रस. समझ गए? फॉर योर हेल्थ. Yes, ma'am. Be careful in your dress if you will. Be careful, इसका बताओ. Be careful in your dress if you will, but keep a tidy soul. मैम टाइडी सोल मतलब क्या होता है? Tidy soul का मतलब होता है keep your soul. Your soul क्या होता है? आत्मा. अपनी अंतर आत्मा को प्योर रखो. मैं बताऊं? बाहर से, हाँ बोलो बेटा. अगर तुम तो अपने कपड़ों के प्रति लापरवाह रहो, लेकिन अपने मन को साफ और स्वच्छ रखो. बिल्कुल सही, एकदम सही. यू आर वरीड अबाउट योर आउटर अपीयरेंस. ठीक है, अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर अपीयरेंस. आप बाहर से तो सुंदर हो, लेकिन मन आपका साफ नहीं है ना? So it simply means that even if you're careless with your dress, it doesn't matter. Keep your inner soul, keep your atma, keep your spirits, absolutely pure. तो टाइडी का मतलब क्या कहते हैं ना, घर को साफ एंड सुथरा रखते हैं. नीट एंड टाइडी बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? नीट एंड टाइडी. सो टाइडी मतलब साफ. तो अपनी सोल को साफ रखो, तभी वो प्योर रह सकती है. Now, classic, a book which people praise and don't read. Oh, it's a beautiful one. बताओ इसका क्या मतलब है? And it's an easy one. I think आपको इसका क्या, हाँ बताओ बेटा. वह किताब जिसकी लोग तारीफ करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है. बिल्कुल सही. They just by reading the reviews, they give their personal comment. They comment on that book कि हाँ ये अच्छी है, it's worth reading, it tells you about this and that, but they did not read it themselves. And it is a classic. Classic जो होती है, that is not a regular novel. It is not a story. उसमें थोड़ा सा आपको philosophy होती है उसके अंदर. ठीक है? As classic means इसके अंदर philosophy हो. Philosophy of life, it can be anything. और आपको उसको समझने के लिए ऑब्वियसली इट विल हैव अ डीपर मीनिंग. सो इट कैन बिकम अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. सब लोग लाइक नहीं करते, सब लोग क्लासिक पढ़ना लाइक नहीं करते. ओनली अ फ्यू वुड लाइक. ओके, जो स्पेशली हु आर लाइक इनटू रीडिंग क्लासिक्स. लेकिन सब लोग नॉवल तो पढ़ लेते हैं, कहानियां, स्टोरी बुक्स पढ़ लेते हैं, बट क्लासिक पढ़ने के लिए नहीं हो सकता. सो व्हेन एवरीबॉडी कांट डू इट, why do they praise or why they even criticize a particular classic when they have not read it? पढ़े बिना पढ़े किताब को तुम उस पर कमेंट्री कर रहे हो, that's not good. Now humor is mankind's greatest blessing. मैम मेरे तो पढ़ना बताओ. हाँ बताओ. बताओ. अभी उसको बताने दो ऋतुपूर्णा को. Let ऋतुपूर्णा tell.
हाँ बेटा बताओ। हास्य मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बिल्कुल है, ठीक है। और कहते हैं ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आपको हंसना आता है तो समझो आपकी 75% आपकी सेहत ठीक है, ठीक हो जाएगी, अगर आपको हंसना आता है, ठीक है। सो इट इज अ ब्लेसिंग, ये तो एक वरदान है, ह्यूमर। ओके। I am an old man and have known a great many troubles, but most of them never happen. मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ मैम बेटा। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैंने बहुत सारी मुश्किलें देखी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी कोई ही नहीं। कहते हैं ना, चिंता करते रहो किसी चीज की, है ना, आप सोचते रहो ये होगा, बट वो होता ही नहीं है। तो आधा से ज्यादा टाइम वो चिंता से ही अपनी तबीयत खराब कर लेते हो आप, राइट। So if you get unnecessarily worried about things or troubles which are not going to happen, then again it goes against your health. Why do it? इसका मतलब आपको नहीं लगता जब हम पूरा पढ़ रहे हैं, so what idea he is trying to convey, Mark Twain is trying to convey through these quotations, that be happy, don't be worried about things which probably won't even happen in life. इन एंटिसिपेशन कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप पहले ही अपनी तबीयत खराब कर लो, तो खुश रहो। सी इज कन्वेइंग दिस मैसेज थ्रू ऑल दीज कोट्स। रिमेन हैप्पी, डोंट बी वरीड, डोंट थिंक अबाउट योर एज, डोंट वरी अबाउट योर लुक्स, ठीक है। रीड गुड बुक्स। आप देखो ना, सारी सब कुछ whatever he says, all these quotes are related to our you know क्या बोलते हैं, हमारी हेल्थ से रिलेटेड बोलो, या हमारी जो एक हमारे लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो हमें चाहिए, उससे रिलेटेड बोलो। नहीं, कहते हैं ना ये सब बातें। To lead a good life, a healthy life, we need to follow what he has said, what he is trying to convey. एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें इसका डीपर मीनिंग समझना चाहिए। I must have a prodigious quantity of mind. It takes me as much as a week sometimes to make it up. बताओ इसका क्या मतलब हुआ? मैम मैं बताऊं? हाँ बता। मेरे पास बहुत ज्यादा बुद्धि बहुत बड़ा दिमाग है, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि मेरे कभी पास कभी प्रचुर मुझे मात्रा में दिमाग होगा, क्योंकि कभी कभी मुझे कोई बेटा आई निर्णय कैन नॉट लेने। अंडरस्टैंड। प्रीति एंड महाजन गणेश के नाम से कौन सा बच्चा है ये? अक्षरा महाजन। अक्षरा। बेटा मैं बता अक्षरा रही को हूँ। बोलने दो प्रीति। अक्षरा से, अक्षरा आप बोलो। मैं कर रही And then थी। प्रीति will say it, okay? मेरे You will पास second. प्रचुर मात्रा में दिमाग होगा, क्योंकि कभी कभी मुझे कोई निर्णय लेने में पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ता लग जाता है। ज्यादा दिमाग हो तो ज्यादा सोचते हैं ना इंसान, ज्यादा सोचते हैं ना, कहते हैं ना ज्यादा यस दिमाग मैम। मत लगाओ इस चीज पे। राइट। प्रीति आप बोलो, यस आप मैम। कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा। मेरे पास बहुत ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसे बनाने में मुझे एक पूरा सप्ताह लग जाता है। ज्यादा दिमाग लगाओगे किसी चीज को करने में, when you are pondering, when you are thinking more about it, obviously you will take more time. You will take more time to take a decision. आप अपना डिसीजन लेने में टाइम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? somebody is impulsive, वो जल्दी से अपना दिमाग भी नहीं पूरा लगाएगा, वो जल्दी से रिएक्ट करेगा और एक्ट करेगा, है ना। इम्पल्सिव मतलब जब हम बहुत जल्दी से तुरंत करते हैं कोई काम बिना सोचे समझे। लेकिन ज्यादा दिमाग होने का क्या नुकसान भी है इसके अंदर ना। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा लंबा सोचेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स, है ना। ये कर लिया तो ये हो जाएगा, वो कर लिया तो वो हो जाएगा। सो ऑब्वियसली इट विल डिले योर डिसीजंस।
आपकी डिसीजन को डिले कर देगा वो। डिले का क्या मतलब होता है? जब आप कोई निर्णय बहुत देर से लेते हो। यू गेट इट? है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If you tell the truth, you don't have to remember anything. और ये तो आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा। Yes, बताओ। ma'am. हाँ, मैम Yes, ma'am. मैं बताऊं? मैं समृद्धि मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? हर्षिदा, मैम मैं बताऊं? हर्षिदा, let हर्षिदा say. हर्षिदा, you've raised your hand, बेटा बोलो। यस मैम। अगर हम सच बोलते हैं तो हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। Precisely. अगर हम सच बोलते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिमेम्बर दैट लाई। और एक झूठ को छुपाने के लिए, आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स बोलते हैं दैट एक झूठ को छुपाने के लिए हम 50 झूठ बोलते हैं, बिकॉज वी डोंट इवन रिमेम्बर दैट लाई, इजंट इट? बट इफ वी आर ट्रूथफुल, अगर हम सही हैं, तो हमें जो याद रखने की जरूरत ही नहीं है उस चीज को, वो तो याद ही रहेगी। It is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them. मैम मैं बताऊं अनुष्का? Yes, बेटा। हाँ, अनुष्का। सन्मान की अनुष्का बताओ बेटा, go ahead. यस मैम। सम्मान के योग्य होना और उससे न पाना सम्मान पाने और उसके योग्य न होने से कहीं बेहतर है। बिल्कुल सही कि you don't deserve it, वो उस टाइप का honor, but you are getting it. Okay, that is worse then deserving it and not getting it. कोई बात नहीं, अगर कोई acknowledge नहीं करता आपका, है ना, तो वो it doesn't matter at all. But if you don't deserve, then you should not get it also. It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubts that you are a fool. मतलब removing their doubts that you are a fool. So बताओ। अपना बताओ अक्षरा। मैं बताऊं समृद्धि? एक सेकेंड, सोनाली आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सोनाली आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? I saw your comment in the chat box, मुझे समझ नहीं आया, couldn't get it. Okay, it is, हाँ जी, आप बताओ प्रीति। मैं समृद्धि। मैम अच्छा, अक्षरा समृद्धि बताओ। आप बताओ। समृद्धि को बताने दो, लेट समृद्धि टेल। अपना मुंह बंद रखना और लोगों को तुम्हें मूर्ख समझने देना बेहतर है, बजाय मुंह खोलकर सारे शक दूर कर देने के। हाँ, Sometimes silent is the best answer. yeah, by giving a foolish answer, isn't it? Some कहते हैं ना, keep your mouth shut rather than open it, say it in public, something which proves that yes, आप foolish हो, आप means किसी की बात करो, ठीक है ना? It's no wonder that truth is stranger than fiction. Fiction has to make sense. क्या हुआ? Truth is stranger than fiction. Sometimes, a real incident, कोई event, it can surprise you. कोई ऐसी चीज जो actually होती है and it surprises you, right? It surprises you more than any fiction. Fiction होता है, not friction. Fiction है story. आप कभी कभी ऐसी स्टोरी, साइंस बेस्ड फिक्शन देखा है आपने, जिसके अंदर आपको एकदम सरप्राइज होता है, ओ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, होता है ना? होता है कि नहीं होता है ऐसी स्टोरीज से, राइट? होता है Yes, मैम। ma'am. तो कभी कभी सच्चाई एक ऐसी इवेंट, एक रियल इवेंट या रियल कोई हैपनिंग हो, इट कैन सरप्राइज यू मोर देन एनी स्टोरी। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है जो कि आपको, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, और वो हो जाता है।
So it surprises you more than any fiction. क्योंकि fiction जो होती है, that is a story. It has to make sense. वो ऐसे नहीं बना देंगे कि आप उड़े और पेड़ पे बैठ गए. अगर आप उड़ के पेड़ पे बैठने योग्य हो तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ. They have to justify it. Although you will be taken by surprise, लेकिन फिर भी they will try to justify in that story कि why this has happened. But कभी कभी कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जिसके लिए we have no words to explain. होता है ना, हम कहते हैं ना हमारे पास शब्द ही नहीं है उस चीज को बताने के. Yes, ma'am. Right? Yes, And that ma'am. doesn't make sense also. Yes. That doesn't make sense also. Right? Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. मैम मैं बताऊं अनुष्का? हाँ बताओ बेटा, बताओ. जब भी आप ज्यादातर लोगों की तरफ पाए तो यह थोड़ा रुकने और आत्मचिंतन करने का समय होता है. Yes, बिल्कुल होता है. और anybody else? कोई और बताना चाहता है? मैम मैं बताओ अक्षरा. हाँ बताओ बच्चे. जब भी आप खुद बहुसंख्यक की तरफ पाए तो यह रुकने और विचार करने का समय है. हाँ, तो वैसे हम लोग ये कहते हैं कि डोंट फॉलो द क्राउड. ठीक है, आप क्या बोलते हैं उसको? भेड़ चाल. भेड़ चाल पता है क्या होती है? Yes, ma'am. है ना. भेड़ चाल मत करो. भेड़े जैसे एक एक भेड़ चलती है, उसके पीछे सारी चल पड़ती हैं गाइड करते हुए, है ना. तो इस तरह से आप वो मत करो कि जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द क्राउड. इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर ऑन द रॉन्ग साइड. कोई जरूरी नहीं है. अप्लाई योर ब्रेन बिफोर डूइंग एनीथिंग. ठीक है. Yes, ma'am. उस टाइम पे इट इज पॉज एंड रिफ्लेक्ट का मतलब है पॉज, टेक 1 minute, थिंक, आर यू करेक्ट, आर यू राइट, आर यू डूइंग गुड by following any particular crowd? Maybe they are wrong. समझ रहे हो कि वो गलत हो सकते हैं. Why is it that we rejoice at a birth and grieve at a funeral? It is because we are not the person involved. मैम मैं बताऊं समृद्धि? हाँ बताओ. मैम बताओ. समृद्धि को बताने दो, फिर प्रीति आप नेक्स्ट बता देना. हम जन्म पर खुश होते हैं और अंतिम संस्कार पर दुखी, क्योंकि उसमें शामिल व्यक्ति हम नहीं होते. यस, वी आर नॉट. हम पता है बेटा, हम भूल जाते हैं कि हम भी कतार में हैं. हम ये भूल जाते हैं कि हम भी कतार में हैं. हम दूर से खुश होते हैं किसी के पैदा होने पे और दूर से दुख मनाते हैं किसी के जाने पर. एंड इट इज बिकॉज वी आर नॉट द पर्सन इन्वॉल्व, क्योंकि हम खुद नहीं है वहां पर उस सिचुएशन में. ठीक है. Thousands of geniuses live and die undiscovered either by themselves or by the others. Geniuses. मैम मैं बताओ अक्षरा. बोलो बेटा. जीनियस का क्या मतलब है? जीनियस का क्या मतलब है? प्रतिभाशाली. प्रतिभाशाली. यस. अति बुद्धि. हाँ, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग जो होते हैं. यस. बुद्धिमान. हाँ बताओ, इसका मतलब बताओ. whenever you ये सॉरी प्रतिभाशाली लोग. ये नहीं था, ये वाला था. उसको हाईलाइट गलत कर रखा है, ये वाला. मैम मैं बताऊं? हजारों प्रतिभाशाली लोग बिना पहचाने ही जीते हैं और मर जाते हैं, या तो खुद के द्वारा या दूसरों के द्वारा. यस, बिल्कुल. इसलिए कि कितने ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनका टैलेंट जो है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल.
राइट? अनडिस्कवर्ड का मतलब उनका पता ही नहीं चला कि वो इतने टैलेंटेड है। वो पैदा होते हैं और इतने टैलेंटेड होते हैं एंड दे डाई ऑफ, पता ही नहीं चलता। पीपल दे डोंट इवन नो अबाउट दैम। कितने, जिनको क्या बोलते हैं, अनसंग हीरोज। हम क्या बोलते हैं उनको? अनसंग हीरोज, जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं है, जिनके बारे में हमने कुछ ना लिखा, ना पढ़ा, ना सुना। ओके, थंडर इज गुड, थंडर इज impressive, but it is lightning that does the work. मैम मैं बताऊं Uh, मैं बताऊं कोमल? अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा। ओके, लिसन, कोमल, कोमल को बताने दो, लेट कोमल टेल अस। ओके, गरज अच्छी हो, थंडर इज गुड। प्रभावशाली होती है, लेकिन असली काम बिजली करती है। ऑब्वियसली, कैसे? क्या मैम? कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, हम बोलते हैं ना कभी कभी। यस। बारिश हाँ आती मैम। बारिश आती है जब बिजली चमकती है, ठीक है? जब गड़गड़ाहट होती है, जब इतना बादल गरजते हैं, तब कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो कभी कभी शांत लोग भी बहुत सही मतलब जरूरी नहीं है कि चिल्ला चिल्ली करने से ही काम बनता है, ठीक है? यस। When I was younger, I could remember anything, whether it happened or not. इसका क्या मतलब हुआ? मैं बताऊं? मैम मैं बताओ अक्षरा। मुझे सब कुछ याद रहता था, चाहे वो बेटा हुआ अक्षरा, आई कांट। हो या न हुआ। प्रीति, आप, प्रीति, प्लीज say it again. We could not hear you. Let Preeti जब complete. Samriddhi, wait, let Preeti complete. Okay. हाँ जी जब बेटा, मैं बोलो, क्या जब बोल रहे मैं हो आप? छोटी थी तो मुझे हाँ सब कुछ याद रहता था, हाँ चाहे वो हुआ हो या न हुआ हो। हाँ, ओके। और कोई? मैम मैं बताओ अक्षरा। हाँ, जब मैं छोटा था तब मुझे सब कुछ याद रहता था, चाहे वह घटना घटी हो या ना घटी हो। ना घटी हो। When I was younger, I could remember anything, whether it happened or not happened. अब आप मुझे बताओ, जब हम छोटे होते हैं कितनी चीजें हमें क्या क्लियरली याद रहती हैं चीजें? नो Do you मैम। remember it clearly? बट वो हमारे दिमाग में वो उस तरीके से बैठ जाती है, हमारी मेमोरी में ऐसे बैठ जाती है दैट वी स्टार्ट टेकिंग इट एज रियल। कभी कभी वो चीज ऐसी होती नहीं है द वे वी थिंक और वी यूज्ड टू थिंक व्हेन वी वर यंगर। जब हम छोटे थे एज में, तो व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रिमेम्बर एनीथिंग वेदर इट हैपेंड। मुझे वो वाली बातें भी याद रहती हैं जो कि शायद हुई ही नहीं थी, क्योंकि मैंने, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा देखने का जो नजरिया था वो वैसा था, ठीक है? ओके, व्हेन योर फ्रेंड्स बिगिन टू फ्लैटर यू ऑन हाउ यंग यू लुक, इट इज अ श्योर साइन यू आर गेटिंग ओल्ड। इसका क्या मतलब हुआ? मैम मैं समृद्धि। मैम मैं बताओ अक्षरा। मैम हाँ, अक्षरा को बताना। जब ओके अक्षर, मैम मैं बताऊं, समृद्धि। लेट अक्षरा से, जब तुम्हारी लेट दोस्त अक्षरा को बोलने दो बेटा। तुम्हारी प्रीति, वेट, वेट फॉर योर टर्न, लेट हर कंप्लीट। यस अक्षरा। जब आपके दोस्त आपकी इस बात पर चापलूसी करने लगे कि आप कितने युवा दिखते हैं, तो यह हाँ, एक पक्का संकेत है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही। जब लोग आपको फ्लैटर करते हैं फॉर एनी गुड थिंग, एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बेटा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, हाँ जी। तो जब आपको लोग फ्लैटर करते हैं, जब आपकी तारीफ करते हैं अननेसेसरली, ठीक है,
and they show as if कि आप आपकी वो चीज आपके अंदर है नहीं है और शायद नहीं है और आपकी तारीफ करते हैं, इसका मतलब झूठी तारीफ करते हैं, जस्ट टू पेप अप, है ना? Yes, तो ma'am. अगर वो ऐसा करे कोई तुम्हारी अननेसेसरली, सो प्लीज नो कि अब वो मतलब वो झूठ बोल रहे हैं. सो ही इज टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ योर लुक्स, ऑफ एज. कोई कहते हैं ना कि आप बहुत यंग दिखते हो, तो ये समझ जाओ कि अब तुम ओल्ड होने लगे हो. दैट इज वाई दे आर सेइंग इट जस्ट टू प्लीज यू. फ्लैटर का मतलब होता है टू प्लीज यू. मैम, हाँ बेटा. मुझे वो समझ में नहीं आया. व्हाई इज इट दैट वी रिजॉइस? एक सेकेंड, कौन से वाला कह रहे हो बेटा? कौन से वाला? व्हाई इज इट दैट वी रिजॉइस? Why is it that हम, बेटा इसका ना एक मोटा मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को डिस्टेंस से देखते हैं, ठीक है, वी आर नॉट अ, हम किसी के जाने पे दुख मनाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि एक दिन हमारे साथ भी वो होना है. वी आर नॉट इन्वॉल्व ना. तो दूर से किसी चीज को करना विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व या विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इज वेरी इजी. हम किसी के, उसने एग्जाम्पल दिया कि किसी के पैदा होने पे खुश होते हैं, जाने पे हम दुख मनाते हैं. सो वी आर डूइंग इट, वी हैव डिटैच्ड आवरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन. वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन. अब हम फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को कहूँ ये तो बेचारा बहुत दुखी है, ये वो, बिकॉज मैं उसको दूर से उसकी मैं सहानुभूति कर रही हूँ. उसके अंदर आई एम नॉट देयर पार्ट, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट थिंग. दूर से किसी चीज को अच्छा बुरा बोलना या दुख मनाना या खुशी मनाना इज वेरी डिफरेंट देन बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. और इसको एक दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं कि हम किसी के जाने पे दुख मनाते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट वी आर आल्सो देयर, वन डे वी आर गोइंग टू हैव द सेम सिचुएशन, फेस सेम सिचुएशन. इसका अगर बाय एंड लार्ज देखो तो इसका मतलब है दूर से किसी चीज को अच्छा बुरा बोलना या खुशी या दुख मनाना इज वेरी इजी, बट टू एक्सपीरियंस इट इज वेरी डिफरेंट. समझ रहे हो? टू एक्सपीरियंस दैट इज वेरी डिफरेंट. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबकी एक्सप्लेनेशन आई विल शेयर इट विद यू so that आपको एग्जाम में, आई एम श्योर यू विल गेट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स, ऑन दीज कोटेशंस. तो एटलीस्ट यू कैन राइट योर आंसर्स. ठीक है? एक मिनट, ये चल के नहीं रहा है. Okay, ma'am. एक मिनट बेटा, ये मेरा ना आज इंटरनेट का कुछ थोड़ा सा इशू है. ओके, कैन यू सी दिस पेज नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the first question is, did Mark Twain tell the barber who he was? Did he tell that? उसने क्या बताया था कि वो क्या नाम है, he is Mark Twain. Mark Twain did not tell the barber Yes. who he was because he did not want to disclose His identity. His identity. He ठीक है? told him अपनी- that it was his first wish to बच्चा, that एक सेकेंड प्रीति, I would like to correct you here. See, when you are writing answer for this ना, try to make it only in one line. इसको एक one line का आंसर बना के रखो. Don't go beyond that. ठीक है? अब उसने सीधा आपसे ये पूछा, did Mark Twain tell the barber who he was? No, he did not tell him. Why? What was the reason? Now आपको why का जवाब तो देना है ना. So just say कि he wanted to keep his identity secret. He wanted to keep his identity secret. अपनी identity, अपनी पहचान को वो secret बना के रखना चाहता था. ठीक है? I hope it's clear to you. अब बाकी के आंसर्स भी you have to give it in the same way. Was Mark Twain particular about
How he dressed when he was visiting friends? Was he particular? No. No. How can he say that? Give a reason for this. He preferred comfort over formal dressing room. Yeah, he was more comfortable remaining in a casual dress. He went without a collar and a tie to one of his friends. Yeah? वो अपनी एक फ्रेंड के पास बिना टाई और कॉलर के गया था कि नहीं गया था? So he was not worried about his looks at all. He was not worried about his dress at all. Okay? Was Mark Twain particular about what words he used? Batao? Yes. Yes, very good. Yes, then give one reason also in support of your answer. Yes. About what words he used. He was one has to be particular about what words one uses. बेटे जब हम one बोलते हैं ना, one use, तो उसको हम आगे भी one ही लगाते हैं. Yes. आगे बोलो. He believed that words should express ideas clearly and effectively. उसने कहा था ना कि अगर हम गलत words use करते हैं, they don't leave the same kind of impression. है ना? So we need to be very careful while using our words. हमें अपने शब्दों के चुनाव में बहुत मतलब सोच समझ के करना चाहिए. Otherwise they won't be effective. समझ गए? Yes, ma'am. Do you think Mark Twain? Yes, ma'am. Do you think Mark Twain approved of spelling reforms? Yes, he did. है ना? Spelling reforms चाहता था ना वो? Yes, ma'am. Yes. So now just give a reason. आमिना बताओ कैसे चाहते थे वो? Twin letting provide By, he wanted some changes in the language. He wanted some spellings to be simplified. है ना? Yes, ma'am. He wanted these spellings to, the pronunciation or the sound of the word should go with the spelling. So what does he want? He actually wants very simple and logical spellings, simple and logical language. Logical, where one can understand. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था KNIGHT night and NIGHT night का, दिया था ना? Yes, ma'am. दिया था. KNIGHT भी नाइट होता है, NIGHT भी नाइट होता है. अब हम तो सीख गए, लेकिन बच्चे को कैसे प्रूव करो, ये कैसे उसको बताओ कि अगर हम K लगा देते हैं उसमें तो साउंड वो नाइट ही रहता है, बट इट मीन्स सोल्जर. ठीक है ना? यस मैम. वैसे हम Yes, नो ma'am. बोलते हैं, NO नो होता है, नहीं बोलना. KNOW भी नो होता है, जानना. Yes, ma'am. है ना? बच्चे को ma'am. कैसे समझाओगे कि KNOW भी नो है और NO भी नो है? So why are we using writing when no is NO, no sound, तो उसमें हमने K क्यों लगा दिया? What is the role of K in that? हम बोलते हैं TO2, है ना? But GO doesn't have the same sound, isn't it? हम GO को go बोलते हैं ना, और TO को टू बोलते हैं. Yes, ma'am. Sound देखो different है. So he wanted that language should be simple and logical. बस इतना लिखना है आपने. Since it is one liner, so बोलो कि yes, Mark Twain approved of spelling reforms because he wanted or he believed in having logical and simple language. How did Mark Twain explain the spider in the paper
And what did he want to highlight? क्या करना चाहते थे वो highlight? Did he believe in superstitions? वो superstition में believe करते थे? बताओ ना. तो उसने क्या बोला था? What did he say? He said that spider appeared in the newspaper to check whether the shop has advertised or not. If it hasn't, then he can easily make his web there. वो अपना जाला बुन सकता है उस शॉप में, because the customers won't come or he'll have lesser customers. अगर उसने एडवर्टाइज नहीं किया है तो, है ना. So उसने उस बात को मजाक में लिया. He made fun. Why? Because he doesn't believe. He thinks that it is the illogical belief. I mean, he's actually highlighting the illogical belief of people in superstition. कि unnecessarily क्यों कोई चीज को भी आप उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हो? समझे? Okay, read the following and write the two meanings of mind and matter. ये मैंने आपको अभी बताया था. What is mind here? Mind means intellect. Mind also means thought, idea. ठीक है? Yes, ma'am. मैंने बताया था ना, है ना, माइंड. एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था ना माइंड एंड मैटर का. उसमें he had taken the example of age, उम्र को लेके बोला था कि suppose I don't mind something, it doesn't matter to me. ठीक है? And if then another example was mind means your मतलब what you think about something, and matter is your physical substance, आपका शरीर. कि अगर आप सोचते हो कि आपकी उम्र इतनी हो गई है और अब इस उम्र के हिसाब से आपको ये वाली बीमारियां होंगी या ये प्रॉब्लम होगी, तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी, चाहे आपको हो या ना हो. ठीक है? सो वी शुड कीप आवर माइंड एंड मैटर, माइंड एंड बॉडी अलाइन. समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. बाकी तो देर Yes, जस्ट ma'am. ये वाले क्वेश्चंस तो आपको आएंगे नहीं, बिकॉज दे आर ऑल asking you to enact certain the role and all that. Okay, now we come to this is very important. यहाँ पे इन्होंने ढंग से समझाया नहीं है बेटा. दिस इज एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव एंड पैसिव जो ये आपका भी टाइम आपका हो चुका है, राइट? सो आपको ये मैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल, मैं ये वाला अपनी तरीके से समझाऊंगी आपको. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, एंड एक्टिव एंड पैसिव. अगर आप एक्टिव पैसिव जानोगे तो यू विल नो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. आपने थोड़ा सा, आई जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन टेकिंग 1 minute of yours. You have done in हिंदी अकर्मक सकर्मक क्रिया करी है आप लोगों ने हिंदी में? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. No, ma'am. हिंदी नहीं तो मराठी में, मैम लैंग्वेज में नहीं किया? मराठी में किए. मराठी में किया ना अकर्मक सकर्मक क्रिया. ओके, इट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, यही चीज है. एंड इट इज रिलेटेड टू योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है? आपकी एक्टिव वॉइस कहाँ पर होता है? जैसे नॉर सूप या ये होता है आपका मैगी. आपके पास अगर मैगी का पैकेट है तो आप उसमें देखो, जो रेडी टू ईट फूड नहीं होता हमारे पास खाने का, जो पैकेट होते हैं जो हम ऐसे खोलते हैं और खाना बना लेते हैं. ऐसा कभी देखा है पैकेट? Yes. मैगी का देखा होगा. तो उसको Yes, ma'am. पलट के देखना. हाँ, जस्ट टर्न इट एंड सी. वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ना बेटा, वो सारे वो कैसे होते हैं, और मैं कल कराऊंगी आपको. ठीक है? Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. विल डू दिस टुमारो. इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं. अगर आपने कुछ करना है एज होमवर्क तो गो थ्रू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस.
एक बार पढ़ के रखना। मैम क्वेश्चन नंबर ओके मैम। और हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा करना है? क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बाद में कराऊंगी, या एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका टाइम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पर है बच्चे? ऊपर Page number 47. क्वेश्चन नंबर 5, form groups of 4 to 6, discuss whether and how you can improve English language। ये नहीं करना बेटा, don't do this, ये करने की जरूरत नहीं है। You won't get questions like this। आपको ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी ना आएंगे, या नेक्ट करो, या ग्रुप फॉर्म करके ये करो, या अरेंज अ जोक सेशन इन द क्लासरूम। ये तो आपकी टीचर खुद कराएगी ना, एक्टिविटी है, तो इसको क्यों कराएंगे? आप समझ रहे हो? Yes, ma'am. ये थोड़ी ना, हाँ आप ये तो नहीं करोगे, ये थोड़ी ना करोगे बेटा। ये तो दिस इज ऑल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो कि आपकी मैम आपको क्लास में करा सकते हैं। सो दिस यहाँ तो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट हैपन। बट मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस कल कराऊंगी, ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम। ओके ओके बेटा, टेक केयर, गुड नाइट। एक बार Good पढ़ night. रखना। Thank you. Good night. Good night, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड